নমস্কাৰ মই বন্দিতা আৰু আপুনি চাই আছে DY365 ডিজিটেল। এতিয়া বহু লোকে পকী ঘৰ লাভ কৰিব, প্ৰত্যেকলৈ আসলতে পকী ঘৰৰ সুবিধা লৈ আহিছে চৰকাৰে। যিসকলৰ ঘৰত মাহে 15,000 উপাৰ্জন তেওঁলোকেও পকী ঘৰ লাভ কৰিব। আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহন আছে তেতে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই, আপুনিও পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে এই সুবিধা লৈ আহিছে বহু লোকলৈ। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। ঘৰত বাহন থাকিলেও চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অসমৰ সকলো দুখীয়া মানুহে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলেও হিতাধিকাৰীয়ে পকী ঘৰ লাভ কৰিব। আৰু ঘৰত দুচকীয়া বাহন থকা হিতাধিকাৰীৰ বাবেও চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এই সুবিধা। অসমৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে। অসমৰ নতুনকৈ 3,88,000 লোকলৈ পকী ঘৰ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে। অহা এপ্ৰিল মাহত বাদ পৰি ৰোৱা সকলো লোকে পকী ঘৰ লাভ কৰিব। আৰু নতুনকৈ সাৰ্ভে কৰি ৰৈ যোৱা সকলক দিয়া হ'ব চৰকাৰী পকী ঘৰ। অনলাইন এপৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীয়ে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম। আৰু ঘৰ নোপোৱা সকলোৱে চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ আত্মসহায় গোটৰ মহিলাই কৰিব পাৰিব জিঅ'টেগ। এতিয়া বহু লোকৰ বাবে সুবিধা লৈ আহিছে। ঘৰত যদি আপোনাৰ বাহন আছে আপুনিও তেতিয়াও পকী ঘৰ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব পকী ঘৰৰ বাবে। তাৰ লগতে অসমৰ যিসকল দুখীয়া পৰিয়াল আছে প্ৰত্যেকলৈ আসলতে এই সুবিধা লৈ আহিছে। কোনো লোক দুখীয়া হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ঘৰত দুচকীয়া বাহন থাকিব পাৰে, গতিকে তেনে লোকেও চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই, আপুনিও পকী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি মাহিলী উপাৰ্জন 15,000 টকা তেন্তে সেই সকল লোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে। ঘৰত দুচকীয়া বাহন থকা হিতাধিকাৰীও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সুবিধা পাব, এই ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। অসমৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে। অসমৰ নতুনকৈ 3,88,000 লোকলৈ পকী ঘৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এপ্ৰিল মাহত বাদ পৰি ৰোৱা সকলো লোকে এই ঘৰ লাভ কৰিব। নতুনকৈ সাৰ্ভে কৰি ৰৈ যোৱা সকলক দিয়া হ'ব চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু অনলাইন এপৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীয়ে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম। তালিকাত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই আপুনি সেয়াও চাব পাৰিব। ঘৰ নোপোৱা সকলোৱে চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নতুনকৈ আত্মসহায় গোটৰ মহিলাই কৰিব পাৰিব জিঅ'টেগ। ঘৰত যদি আপোনাৰ বাহন আছে তেন্তে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই। আপুনি যদি দৰিদ্ৰৰ শাৰীত পৰে তেন্তে আপুনি ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, বা আপোনাৰ যদি মাহিলী উপাৰ্জন 15,000 হয় তেন্তে তেতিয়াও আপুনি এই ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকললৈ এইবাৰ চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু নতুনকৈ ৰৈ যোৱা লোকৰ বাবে 3,88,000 লোকৰ বাবে পকী ঘৰ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ চৰকাৰে। অসমৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে। এয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা। আৰু এপ্ৰিল মাহত যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ঘৰ পোৱা নাই, যিসকল বাদ পৰি ৰ'ল, তেওঁলোকক ঘৰ দিয়া হ'ব। নতুনকৈ সাৰ্ভে কৰি ৰৈ যোৱা সকলক দিয়া হ'ব চৰকাৰী পকী ঘৰ। অনলাইন এপৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীয়ে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম। ঘৰ নোপোৱা সকলোৱে চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নতুনকৈ আত্মসহায় গোটৰ মহিলাই কৰিব পাৰিব জিঅ'টেগ। আৰু আমাৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ মন্তব্য আছে, তেওঁ কি কৈছে শুনে ল'ব বিচাৰিছো। दो काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कहीं के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए
तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए हैं दादा, 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी, और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। आज हेमंत दा आपको मैं फिर बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान, 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और उसके बाद
अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। 2 काम हम कर रहे हैं।